In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Thank you very much indeed for a very kind and loud response. And I really love your voice when you speak aloud with a bit of emotional appeal. It looks pretty good. Dear friends, today we are going to improve our vocabulary. And you know, vocabulary is a fundamental part of language learning and teaching. You can't learn language without learning vocabulary. You can't teach language without learning vocabulary. Learning language means language learning in all four areas. There are four areas of communication: listening, speaking, reading, and writing. So vocabulary is fundamental in all four areas. You can't do with justice with a language without learning vocabulary. So vocabulary is my sweetheart. I've been giving a lot of attention to learning new words on daily basis. I must recommend you, it is highly recommended, brother, to learn vocabulary on daily basis. You are doing it on weekly basis here at the platform of Genius Institute Lahore, but you must give attention to vocabulary learning on daily basis. Keep on enhancing your vocabulary and you will keep on improving your language. Language improvement without vocabulary is just a dream. You can't speak good English if you don't have much more vocabulary. You know, learning vocabulary also makes you a deep thinker. The more words you learn, the more thinking process is done. And you are thinking deeply, you are involved into the words, and you try to enhance your vocabulary in such a way which helps you in making sentences. You can't make any sentence without good words and vocabulary. Words are needed at the same time. Some sort of grammar is needed. As I tell you always, that language is a combo of grammar, how to say, vocabulary, what to say. So you can become a good listener provided you have a wide range of vocabulary. You can become a good writer if you know about the formal academic words. Vocabulary is needed in all areas of language learning. So that's why we have given you this delightful, activity. When you start learning vocabulary, enhancing your knowledge about vocab items, this process becomes delightful for you. I know it has entertained the people to a great degree. I have also consulted students when they are learning new words, when they are giving the presentation of the new words here at the platform. They feel delighted. They are over the moon because they are learning something new every day. And that's the need of the hour, to enhance your vocabulary for becoming a good communicator. Guys and girls, today we are once again going to have an additional video in the playlist of Vocab Booster and in Genius Institute Lahore's YouTube channel. So here you go. So dear friends, we have got Hamid Chishti here in front of us. He's going to be the first genius behind the podium today to express his vocabulary items. He's got a couple of words. So let's get started, please. Yes, good morning. Today I have two words. The first one is Yes, please. yes, good morning. My first word is discrimination. The spelling is D-I-S Discrimination. Okay. D-I-S-C-R-I-M-I-T-I-O-N. Discrimination. Right. It's a noun. Okay. Yes. It's a confident noun. It's Huh. a confident noun or under control noun, sir. Okay. I think it's Discrimination, इसका parts of speech को देखा जाए तो in parts of speech its grammar status is a noun. Parts of speech में इसका grammar status noun है. Discriminate is the verb. Family की बात की जाए तो, right. and the subject is meaning, then it's synonymous
दे आर, इसका उर्दू में मतलब है तसरफ होना, किसी चीज़ का खर्च हो जाना और काबिल इस्तेमाल में आ जाना किसी चीज़ का, जो कि वो चीज़ जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट, इसका ये मतलब है। जी, तसरफ, किसी चीज़ का तसरफ हो जाना। डिस्क्रिमिनेट तो होता है फर्क करना होता है, इनफैक्ट कि डिस्क्रिमिनेट। सर दिस आई अपोलोजाइज ऑन इट, इट इज जस्ट बिकम ऑन डेटाबेस, सॉरी, दिस वर्ड इज इम्तियाज होना किसी चीज़, फर्क होना, इम्तियाज होना। यस, हमें आपका वो जो मतलब हजम नहीं हो रहा था। यस सॉरी सर, ऑलराइट, एक्चुअली देयर इज मिक्स, असल में हॉच पॉच ऑफ आइडियाज है Yes. कि बहुत सारी चीजें मिल गई हैं दिमाग में आकर। राइट, नो प्रॉब्लम, ओके। बिकॉज ऑफ योर पोएट्री सर। Oh my God. Actually, my poetry has transported him in the world of imagination. He lost in your poetry. यस, Yes. किसी चीज़ का इम्तियाज कर देना, किसी चीज़ में उसको अलग इम्तियाज फर्क फर्क करना। के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। राइट, एंड इट, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के, ये यहाँ पे चीज़ इस्तेमाल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ में। अच्छा, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन फर्क और इम्तियाज होता है, इसके कॉलोकेशंस आपको कुछ पता है? हाँ जी, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एज डिस्क्रिमिनेशन, एज डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, शाबाश। रेस डिस्क्रिमिनेशन, रेस, एक्सीलेंट, रेस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कहीं आपका कोई कंपटीशन हो तो कंपटीशन में भी एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। राइट, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। राइट, इट्स यूज इन, वी कैन इन कंपटीशन आल्सो एज वेल सर। कंपटीशन तो होता है मुकाबला, मुकाबला, तो डिस्क्रिमिनेशन तो फर्क या इम्तियाज। इम्तियाज। राइट, तो इसके साथ सिनोनिमस आपको बता दिए, इसके एटोनिमस जो हैं वो Antonyms. एंटोनिम्स। नहीं, सिनोनिम्स नहीं बताया, ये आपने मुझे कॉलोकेशंस बताए हैं। राइट, इसके कॉलोकेशन कॉम्बिनेशन के साथ जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या है डिस्क्रिमिनेशन के, आप प्लीज देख लीजिए साथ साथ ही, हम हेल्प करते जाएं। यस, डिस्क्रिमिनेशन के जो आएंगे इसमें आएंगे सर, डिफरेंस होगा, एक Injustice. डिफरेंस होता है, प्रेजुडिस, और क्या होता है? Injustice. इनजस्टिस। लीगल, Unfairness. यस, in legal I think prejudice, Prejudice. प्रेजुडिस होता है। राइट, in law I think। राइट, प्रेजुडिस होता है, इसको भी उर्दू में बड़ा खास सा एक वर्ड तासुब कहते हैं, उसका मतलब Bias बनता है होना। तासुब। It's also called in bias also। बाइस, शाबाश। I have practiced because I inspector meet with me, he was biased with my conversation। राइट, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन को एक सेंटेंस एंटोनिम्स क्या है इसके? हेलो, Equality. इक्वलिटी, Tolerance. टॉलरेंस, Justice. जस्टिस। कितने जबरदस्त इसके जो है वो। ऑन द अदर हैंड उसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, वो है इक्वलिटी, जस्टिस और टॉलरेंस। It's a hard word I think sir। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके आप सेंटेंस बताइएगा क्या हो सकता है इसका, डिस्क्रिमिनेशन के सेंटेंस प्लीज। मैं बताता हूँ। जी, A political wing especially discriminate on their internal policies। हाँ, डिस्क्रिमिनेट एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है, एज ए नाउन इसको इस्तेमाल करना है। देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, यस Discrimination can make people feel hurt and excluded. यस, डिस्क्रिमिनेशन कैन मेक, अगर आप फर्क करते हैं लोगों के दरमियान, जी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, या ऑन द अदर हैंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि मेल को या फीमेल्स को तासुब। प्रायोरिटी मिल रही है और दूसरे को इंफीरियर समझा जा रहा है। सो डिस्क्रिमिनेशन जो है कैन हर्ट कैन मेक पीपल फील हर्ट। Yes। डिस्क्रिमिनेशन लोगों को हर्ट फील करवा सकता है। बस अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले जाइए प्लीज, कुछ और बताना चाहते हैं जी। In Pakistan last year a lot of discrimination on the women march। देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन on women march। इम्तियाज फर्क था, नहीं इस तरह नहीं इसको यूज कर सकते आप। उसकी सेंस आप बताना चाहते हैं कि last the year discrimination for the women day on the women day was
observed last year. The discrimination on the Women Day was observed was observed last year. Okay. Right, like this. Next word, please. Next word is Disposal. disposal. Yes. जी, disposal is the next word. शाबाश. डिस्पोजल किसी के ईमा पे आपको स्टैंड बाई रखना, किसी के कोई मेरे ईमा के ऊपर वो स्टैंड बाई होगा, कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ मेरे ईमा के ऊपर वो मेरे लिए स्टैंड बाय हो, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जैसे होता है ऑन योर डिस्पोजल, ऑन योर डिस्पोजल, आपकी ईमा पे छोड़ दी गई है ये चीज कि वो चीज़ मेरे हाँ। तसर्रुफ आएगा, इसका तसर्रुफ जी, तसर्रुफ में है, बिल्कुल तसर्रुफ में आ जाना, बिल्कुल तसर्रुफ में आना, किसी चीज का आपकी ईमा पर होना। इसके सारे मीनिंग्स ये आ गए, जैसे कहते हैं द थिंग हैज बीन लेफ्ट इन योर कोट, इन योर कोट, आपकी कोट में जो है वो एट योर डिस्पोजल, राइट। and the synonyms are disposal, डिस्पोजल, removal, रिमूवल, elimination, एलिमिनेशन, disposition, डिस्पोजिशन। ये थोड़े थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज के साथ। how we can use elimination, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट तो करता होता है, खत्म करना होता है, या उसको बतदरीज किसी बात को या चीज को खात्मा कर देना, उसका काट देना, साइड पे कर देना, साइड पे एलिमिनेट करना। जी, तो एनीवे ये मैंने इसलिए कहा थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, yes, तो नॉट एग्जैक्टली द सिनोनिम्स, लेकिन कॉलोकेशंस क्या हैं जी? disposal of waste disposal, राइट, waste disposal, वेस्ट डिस्पोजल, yes, proper disposal, प्रॉपर डिस्पोजल, safe disposal, सेफ डिस्पो। अब ये डिस्पोज ऑफ करना है इनफैक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज को ठिकाने लगाना, उस सेंस में इस्तेमाल हुआ एलिमिनेशन। elimination, okay, हाँ, डिस्पोज ऑफ करना किसी चीज को। ठीक है। आप कहते हैं ये लिटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये इसको, ये लिटर कूड़ा करकट है, इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। and services is also included in this. Services is, we can use the services, हाँ, यस, these services are disposal on you or ऑन योर डिस्पोजल, on the, आपके डिस्पोजल पर हैं जी। it legal disposal, लीगल डिस्पोजल हो सकता है जी, और safe disposal, सेफ डिस्पोजल। थैंक यू। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं जी? preservation, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज। maintenance, अब देखिए, डिस्पोजल से मुराद वही डिस्पोज ऑफ करना, एलिमिनेशन की सेंस में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ जो है वो स्टोरेज है, वो ठिकाने लगाना, ये स्टोर करना है, yes, स्टोरेज, holding, होल्डिंग, keeping, कीपिंग, राइट, ये इसके I have a एंटोनिम्स very हैं। good sentence on it, if you don't mind. Yeah, please. Disposal in coming days, maybe in Third World War, Pakistan Army in disposal of U.S. Army. In Third World War, Maybe the Pakistan No. army would be on the disposal of American troops in Third World War. in Third World War. All right, जी, disposal का सेंटेंस आपके पास क्या है? the company provides safe disposal services for electronic waste, Safe disposal services for the electronic waste. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। I am disposal on your class. I'm in the class. I am disposal on Mr. N.S. Sakar. यार, I'm on your disposal all the time. मैं आपके disposal पर हूँ, जब चाहे आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। Thank you very much. Thank you very much. Very nice. The whole class is on the disposal of Sir N.S. Sakib. All right. So this is another gentleman who would like to say a few words. So my first word is disclosure. Disclosure is the next. Disclose is the noun, verb, or disclosure is the noun, right? Its meaning in Urdu is inkishaf, Oh, inkishaf. and its synonyms are surprise. Disclosure के स्पेलिंग नहीं बताया आपको, बताया था इसकी स्पेलिंग भी आपने बताने हैं। DISCLOURS. SURE,
SUR. Disclosure. And its synonyms are surprising fact or closure. हाँ, surprising facts. And its antonyms are concealment or closure. जी, इसके जो है वो closure, जिसे इसको बंद करके रखना, और क्या है आपने? Concealment, छुपाने की सेंस में. Conceal, छुपाना. Concealment, छुपाने का अमल. Noun. Right. And its sentence is, there was no doubt that there was a genuine public interest in disclosure of that news. Genuine नहीं होता, genuine होता है. Genuine. There was no doubt, कोई शक नहीं था. आगे? There was no doubt of disclosure of that genuine. There was no doubt the disclosure was. There was a genuine public interest in disclosure of that news. There was a genuine public interest. The Right. collocations are disclosure of secret, disclosure of information, or Disclosure of secrets. राजों से पर्दा उठाना, राजों का इंकशाफ. बहुत सारे राज दफन है हामिद साहब के सीने में. So the बहुत सारे हस्बैंड्स का एक जैसे ही हाल होता है. वो मैं उसका नाम न लूं और लोग पहचाने, वो आप अपना तारुफ हवा बहार की तसल्ली जरूरत नहीं, बस ये कहें कि हस्बैंड है, सब स्टोरी सामने आ जाएगी. अस्तगफिरुल्लाह. जी, नेक्स्ट जी. So the second word is discourse. Distort. Discourse. Discourse. Wow. Discourse. Yes. DISCOURSE. शाबाश. Its Urdu meaning is गुफ्तगू. गुफ्तगू के लिए डिस्कोर्स इस्तेमाल होता है. Grammatical status is it's a noun, and its synonyms are discussion, talk, Discussion, talk. conversation, and antonyms are silence, wordlessness, peace. अच्छा, इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्वर्सेशन, Yes. discussion, talk. टॉक. डिस्कोर्स के लिए जैसे कहते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये सियासी गुफ्तगू होनी जरूरी है. जैसे कहते हैं इमरान खान कहता है कि आई एम रेडी फॉर द डिस्कोर्स, फॉर द टॉक्स. मैं गुफ्तगू के लिए तैयार हूं. लेकिन वो तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ही इज रेडी फॉर डिस्कोर्स. ही शुड बी रेडी फॉर द डिस्कोर्स विद द पॉलिटिकल पार्टीज. उसको उनके साथ इंगेज करना चाहिए पहले अपने आप को. ऑलराइट. So the sentence is. लेकिन वो कहते हैं इनके हथ पल्ले कुछ नहीं है, इन्होंने की गल करनी में. Yeah. In a sense he's right. Okay. So the sentence is, she delivered an entertaining discourse on the current situation of film industry. वाह, ये मुझे लगा रीमा जी या मीरा जी की बात कर रहे हैं. द करंट फिल्म इंडस्ट्री का डिस्कोर्स, उसने एक इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स दिया, इंटरेस्टिंग टॉक की उसके हवाले से. And the collocations are discourse of history, discourse of standards, तारीख की बातें, डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख की गुफ्तगू, discourse of current हिस्टोरिकल affairs, डिस्कोर्स, तारीखी गुफ्तगू. राइट. discourse on current affairs. डिस्कोर्स ऑन करंट अफेयर्स. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. So guys and girls, the next presenter or the next candidate is Mr. Rohit. Assalamu alaikum. So my first word is domain. Domain. Domain, right. If we talk about the synonyms of domain, the synonyms of domain is area. नहीं, पहले synonyms की बात तो नहीं करेंगे. Domain spelling बताएंगे आप. Spellings of domain is DOMAIN. Domain, right. और if we talk about now synonyms, the नहीं, इसके बाद इसके meaning की बात करेंगे. meaning इसकी आती है आपका area of interest, यानी आपका हल्कादारी या फिर जहाँ पे आपका होल्ड हो उसे डोमेन कहते हैं. जो आपका एरिया है, एरिया के लिए डोमेन इस्तेमाल होता है. राइट. अब बताइए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये डोमेन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर स्टेटस क्या है इसका? इज इट अ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है ये नाउन भी इस्तेमाल नाउन के लिए ही इस्तेमाल होता है. ठीक है. ओके. अब इसके आप बताएंगे सिनोनिम्स
The synonyms of domain is area, sphere, territory, sphere, 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 territory, territory, शाबाश, और field, field, शाबाश. इसके एंटोनिम्स क्या हैं? Antonyms, the antonyms of domain is no man lands. नो मैन लैंड. ओह, जब एक ब्लाइंडर नहीं होता, वो मार देता है, ऐसी कोशिश करता है उठा के बाल को फेंकने की बाहर, तो वो बाहर बाउंड्री पार तो नहीं करता, ग्राउंड के अंदर ही गिरता है बॉल, लेकिन वहां फील्डर को नहीं खड़ा होता, तो वो कहते हैं वो इन नो मैन्स लैंड, वहां बंदा को नहीं उस जमीन पे गिरा है. राइट, नो मैन्स लैंड. और वो भी वैसे भी जो जमीनें पड़ी होती हैं बेनामी, हाँ जी बेनामी, तो उसको भी कह सकते हैं नो मैन्स लैंड, कि भाई जिन्हें तो कुछ के साथ ताल्लुक नहीं है. वहाँ फिर बाद में ये जो है वो उसको जब पोजेशन होती फिर वो अपन लिख देते हैं कि ये इसकी मलकियत है. राइट, बेनामी. जी. uncharted territory, अनचार्टेड टेरिटरी. और wilderness, विल्डरनेस. ओह माय गॉड. ओके, दैट्स गुड. और उसके कोलोकेशंस क्या हैं? और इसकी कॉलोकेशन है वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी नहीं, कोलोकेशंस होता है डोमेन के. दो कोलोकेशंस देखिएगा प्लीज. Domain name, डोमेन नेम, domain registration, डोमेन रजिस्ट्रेशन, domain transfer. डोमेन ट्रांसफर. ये डोमेन वो वाली डोमेन भी है जो आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप वहां डोमेन बाय करते हैं. राइट, ओके. You can say rights, sir. Reserved rights. हाँ, रिजर्व्ड राइट्स. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट वर्ड. इसका सेंटेंस बनाए डोमेन का क्या है आप? दिस बिल्डिंग इज इन द डोमेन ऑफ दैट बिजनेसमैन. This territory, this building is in the domain of the in the domain of Harbanspura police station. Right, thank you. Next word, please. Next word is doctrine. Doctrine. The spelling of doctrine. Doctrine. Hello. Doctrine होगा. Doctrine. I think that this is the Urdu version of doctrine. Right. The spelling of doctrine is DOCTRINE. Right. आगे. और इसके मीनिंग होते हैं नज़रिया, जो टीचिंग्स. Sorry, doctrine means ideology. आइडियोलॉजी, नज़रियात और बिलीव्स वगैरह. Beliefs. शाबाश. एंड शाबाश. Synonyms. synonyms is बता दिए आपने. डॉक्ट्रिन beliefs, क्या जो है teachings. जी. इसके एंटोनिम्स, antonyms, ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? disbelief, distrust और डिसबिलीफ, डिस्ट्रस्ट. just a second. आप अपने पेज के ऊपर लिख के ला के सामने रख सकते हैं, जहां जरूरत पड़े वहां देख सकते हैं आप. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसको जुबानी याद करके ही आना है. ambiguity, doubt. एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी भी होता है जो चीज इबहाम को कहते हैं. इबहाम, एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी इन द आर्गुमेंट्स होता है, दलाइल में इबहाम कि पता नहीं केड़े पास है यार, की कहना चाहता है और तू की चाहना है यार. एम्बिग्विटी इन द एम्बिग्विटी मीन डाउट्स. राइट. अच्छा, अनक्लैरिटी, जहां क्लैरिटी नहीं होती. जी. अब सेंटेंस. जी जी. The teacher was fond of the doctrine for the equality of our students. The teacher was fond of the doctrine. The उस्ताद जो है वो शौक रखता था इस नजरिए का that all students, all human beings are equal. ये उसका डॉक्ट्रिन हो सकता है कि तमाम इंसान बराबर हैं. And sir, the most popular word in Pakistan last year, doctrine. Most because it's a debatable point in the talk show. डिबेट्स, डॉक्ट्रिन का लिफ्ट इस बहुत इस्तेमाल होता रहा है डिबेट्स में भी, पॉलिटिकल शोज, टॉक शोज में भी. राइट, थैंक यू वेरी मच. और इसका सेंटेंस भी बता दिया आपने. ओह, वेरी गुड.
Come on, boys. Come on, come on. Assalamu alaikum. My first word is discretion. Discretion, discretion. Discretion. The spellings are DISCRETION. Discretion. शाबाश, discretion. It's a noun. अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, आप याद है ना, आपने सुना होगा कि ये इसकी उसके डिस्क्रिशन पर है भाई, ये उसकी सवाबदीद, इसका क्या मतलब होता है? सवाबदीद, दूर अंदेशी. सवाबदीद के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई हाँ, डिस्पोजल भी हो सकता है. अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं सवाबदीदी इख्तियारात कि भाई आपकी सवाबदीद पर है, जिसे चाहे उसे बख्शे, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए. अगर चाहे उसे बख्शे, न बख्शे तो शिकायत क्या. अब पहला मिसरा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, कि जो आप चाहते हैं भाईजान कर लो, उस तक दरबार से हाजिर हो गए हो. राइट, शाबाश. It's a noun and the Urdu meanings are sawabdeed or dur andeshi. शाबाश. And the synonym of this word is consideration, caution, Consideration. consideration, Okay. cautions, Cautions. and vigilance हाँ, and judgment. judgment. Yeah, judgment. ठीक The है. antonyms are Antonyms. ignorance and carelessness. हाँ, जब विजिलेंस होगा तो फिर इग्नोरेंस और केयरलेसनेस ही होगा. शाबाश. And thoughtlessness. Thoughtlessness. The collocations for these words are absolute discretion, Absolute discretion. मुकम्मल इख्तियार. judicial discretion, होता है, ये क्या होता है? जुडिशल होता है अदलिया का. जी, जुडिशल डिस्क्रिशन और or broad discretion. ब्रॉड डिस्क्रिशन. ठीक है. The example sentence is she handled the awkward situation with great discretion. वाह वाह वाह. She handled the awkward situation with great discretion, mean with great wisdom. यहाँ discretion का मतलब wisdom की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. The second sentence can be like judges. Second word. अच्छा, second sentence. sentence इसका. The judges should have a wide discretion to temper justice. To temper. To temper justice. टेम्पर जस्टिस. जस्टिस को टेम्पर करने का इख्तियार होना चाहिए. अल्लाह, कितों की गल कर रहे हो? Pakistan. की. अच्छा. My second word was पहले ही उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला. जी. yeah. My second word was actually discrimination, but I think there's a mistake made by me or him. But the second word is disruption. Now I'm going for डिसरप्शन. वाह, अच्छा वर्ड है जी. DISRRUPTION. disruption. Urdu meaning is khalal, and कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का. एक पुरजा ढिला है भाईजान, ये तो इश्क नहीं हैगा, ऐथे को पुरजा ढिला है जी. and it's a noun. Its synonyms are disturbance, disarranging, or interference. डिस्टर्बेंस. अच्छा, डिसरप्शन. आप पता है डिसरप्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, डिस्टर्ब करने वाले स्टूडेंट्स. बाज़ का ना पढ़ देना ना पढ़न देने ने, हर वक्त कोई ना कोई शरारतें करते रहते हैं. राइट. वेरी मिस्चीवियस होते हैं. क्या होते हैं? मिस्टीरियस नहीं, वो तो हस्बैंड्स की एक्टिविटीज मिस्टीरियस हो सकती हैं. वो मिस्चीवियस होता है, शरारती, नॉटी की सेंस में है. शाबाश. And interruption. These are the synonyms. The antonym can be organization, order, and ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, तरतीब, System. तंजीम. system, or calm. The collocation for these words are economic disruption, हाँ, इकोनॉमिक डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस. disruption, minimal disruption, मिनिमल
Meaning- मुख्तसर थोड़ी से थोड़ी डिस्ट्रप्शन, डिस्टर्बेंस, supply disruption. सप्लाई डिस्ट्रप्शन, मतलब कोई चीज़ आप पहुंचा रहे हैं उसके अंदर जो है मिस और डिसऑर्डर आ गया है या उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस आई है। शाबाश। The sentence for this word is like the rail strike is causing major disruption in the construction. कौन कॉज कर रहा है डिस्ट्रप्शन? The rail strike. Railway strike can be. रेलवे स्ट्राइक, Yes. Real estate strike. Rail. R-A-I-L. Rail. और रेल स्ट्राइक और रेलवे की स्ट्राइक जो है इज कॉजिंग अ सीरियस Disruption. डिस्ट्रप्शन in the इन कंस्ट्रक्शन, construction. Sorry. इन कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रप्शन इन कंस्ट्रक्शन। Yeah. ये सारे वर्ड्स बोल बोल के बाजुकात आपका मुंह थक जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। Thank you so much. वेरी गुड। यस प्लीज, इट्स योर टर्न नाउ। Assalamualaikum. My first word is desirable. सॉरी, Desirable. डिजायरेबल। And spelling is Desirable. And its English meaning is having pleasing qualities, fine and excellent. फाइन, एक्सलेंट, डिजायरेबल का उर्दू में मतलब इंग्लिश में है और उर्दू And में its Urdu meaning is पुरकशिश, ख्वाहिश के काबिल, ख्वाहिश के काबिल, पुरकशिश, मरगूब, पसंदीदा. मरबूत, पसंदीदा। And its शाबाश। synonyms are attractive, इसके सिनोनिम्स हैं अट्रैक्टिव, fascinating, फैसिनेटिंग, valuable, वैल्यूएबल, and its antonyms are unattractive, ठीक है, undesirable, अनडिजायरेबल, and collocations are desirable is desirable impact, डिजायरेबल इम्पैक्ट, असरात, डिजायरेबल, desirable traits, डिजायरेबल ट्रेट्स, खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। डिजायरेबल ट्रेट्स, जी, desirable features, डिजायरेबल फीचर्स, जो उसके वही फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही मतलब है। and the word desirable used in a sentence, the house is in a highly desirable location. Oh, the house is on the In the highly desirable location. high desirable Location. location. And the other sentence is the experiment didn't achieve desirable result. The experiments didn't achieve the Didn't. desirable Didn't achieve, did not, didn't. didn't achieve the desirable Result. results. तजर्बात के अंदर जो है वो अट्रैक्टिव किस्म के रिजल्ट्स नहीं मिले जो ख्वाहिश किए गए थे, पुरकशिश किस्म के रिजल्ट्स। And the other word is destructive. D-E-S. Destructive, ये destruct as a verb, destruction is a noun, destructive is an adjective, or destructively is an adverb. And the spelling is D-E-S-T-R-U-C-T-I-V-E, destructive. And its Sure. English meaning is causing great and irreparable damage. Causing great and irreparable, irreparable ही कहना, Irreparable. irreparable क्या बोलते हैं? Irreparable. irreparable क्या होता है? जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो And ये it's- क्या वर्ड हुआ जी? एक्सक्यूज मी, irreparable। हामिद साहब क्या हुआ ये लफ्ज? irreparable होता है जिसको रिपेयर नहीं किया। कहता भाईजान तू तेरे नाल डिस्कशन नहीं करी, तू तो है ही irreparable, irreparable। कि तुम तेरी इस्लाह irreparable या irremediable, जिसकी रेमेडी नहीं है, ये इसका एक सिनोनिम और है, irremediable। क्या है? irremediable। एक और इसका सिनोनिम है incorrigible, नाकाबिले इस्लाह, incorrigible। एक और है irreformable, जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, जिसको इस्लाह नहीं की जा सकती। कितने शानदार वर्ड्स उसके सिनोनिम्स है जो बताएं इन्होंने, irreparable, irreformable, incorrigible और irremediable। And its Shab. Urdu meaning is tabakun. तबाह कुन, जी। And synonyms are devastating, fatal, and deadly.
सॉरी, ये एंटोनिम्स है। synonyms. सिनोनिम्स क्या है? Devastating, fatal, डेवास्टेटिंग तबाहकुन, fatal, फैटल FATAL फैटल, and deadly. डेडली, अल्लाहु अकबर। ये सारी चीजें जब जो है वो आप इधर एक तरफ लिखे विमेन और आगे 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 आएगा उसका सिनोनिम क्या होगा? फैटल, डेडली, डिस्ट्रक्टिव, डेवास्टेटिंग। Its grammatical status is an adjective, इस एन एडजेक्टिव है जी ये, राइट। and collocations are destructive impact, destructive path, बहुत अच्छा बता रही है। Highly डिस्ट्रक्टिव destructive. इम्पैक्ट, तबाहकुन असरात, असर। And you- डिस्ट्रक्टिव पाथ, तबाहकुन रास्ता। and used in a sentence, clearing the tree by burning or highly destructive of the environmental forest. ये नहीं समझे तो जुमला की बोले है। Clearing the tree. Sorry? By clearing the tree. केयरिंग अ ट्री, Clearing, खत्म कर देना दरख्तों को। Clearing, clear. By burning, जला के Clearing दरख्त the tree by burning. ओके, is highly destructive of the forest environment. इज हाईली डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, क्लियरिंग द ट्री बाय बर्निंग, एक ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ किया है, पोल्यूशन पैदा किया है। क्लियरिंग द ट्री बाय मतलब वो कहते नहीं एक तो दूसरा नीम चढ़ा, क्या कहते हैं, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। मकसद एक तो आपने ट्री को क्लियर किया है, उड़ाया है, ऑक्सीजन का जरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है जो, और दूसरा उसको जला भी दिया है। फिर उन्होंने वो भी पैदा किया है, आपने पोल्यूशन पैदा किया है। इज हाईली डिस्ट्रक्टिव फॉर द एनवायरमेंट, ये कहना चाहिए। And smoking is a destructive habitat that can cause a variety of the human's health and causing the problems such as a cancer, lung cancer. नहीं समझ आ रही है, इस तरह बड़ा जुमला बोल दिया आपने। स्मोकिंग इज डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन हेल्थ, बस इतना कह दें। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव या डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल भी होता है, इंजोरियस, क्या लफ्ज है जी? इंजोरियस या डेट्रीमेंटल भी होता है, जो कि नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह के लिए इस्तेमाल क्या होता है? जैसे इन्होंने कहा स्मोकिंग इज डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन हेल्थ। जब भी लिखा होता है वो इंजीरियस कहते हैं। इंजोरियस, इंजर से है ना, इंजर जख्मी करना, इंजोरियस, डेट्रीमेंटल, जब भी लिखा होता है इंजीरियस, इंजोरियस। वो इसीलिए अब देखते भी हैं लोग, उसको पीते भी हैं। एक आदमी से हमने पूछा की कर रहे हैं, सिगरेट पी रहा था, कहला सर करना की है, पी रहे हैं तो जी रहे हैं। तो ये समटाइम ये भी होता है। मैंने कहा यार अच्छा आपने कॉलोकेशन सॉरी एक रिदम बनाया है जी, शाबाश, थैंक यू। Oh God, my God. Yes, Miss Aisha. So my first word is defy, DEFY, and its Urdu meaning is khilaf warzi karna, and in English it's meant to challenge or confront something confidently, and To challenge और confront, सामना करना किसी चीज का confidently. and the synonyms are disobey. हाँ, आपने इसका एक नाउन सुना होगा, डिफायंस। डिफाई का डिफायंस जो है वो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, राइट। डिफाई टू कन्फ्रंट, डिफायंस कन्फ्रंटेशन होगा। फिर Grammatically, it's a transitive verb, so it requires an object to complete the meaning. And the synonyms are disobey, confront, challenge, resist, and the antonyms are obey, accept, and surrender. शाबाश। And the collocations are defy logic, defy expectations. कुछ लोग जो है वो लॉजिक से उनका कोई अमल दखल नहीं होता, तो डिफाई लॉजिक, वो उसको कहते हैं, लॉजिक को पसंद नहीं करते, डिफाई करते, कन्फ्रंट करते हैं लॉजिक को। Defy explanation. And the example sentence is the students defy the rules by chewing gum in the class, and the toddler defied
defied bedtime by refusing to sleep. आखिर दूसरा सेंटेंस क्या है? The toddler defied The bedtime. toddler. Toddler defied bedtime by refusing to sleep. हाँ, आपको पता है छोटे बच्चे जो है वो अल्लाह का शुक्र है वो आप सोते हैं तो वो जागते हैं और अब जब जाग रहे होते हैं तो वो सो रहे होते हैं। अच्छा, ये बात है। तो उनका जो टाइम होता है वो माशाल्लाह काफी चैलेंजिंग होता है और फिर बच्चे ये कहते हैं लो असि तो खुद ही अपने आप बड़े हो गए। मैं कहता हूँ तुम बड़ा बड़ा हो गया तो कि तुमने ये बात कहना सीख ली कि मैं खुद ही बड़ा हो गया। उनको पता नहीं है कि वालिदैन की नींदें कुर्बान हुई हैं, वालिदैन के जो है वो इतनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं आपके लिए। अब यहाँ तो थोड़ा सहूलत हो गई। आपको पहले पैम्पर्स वगैरह भी नहीं होते थे। बच्चे रात को किस तरह से डिस्टर्ब करते थे और वालिदैन उठ के सर्दियों में अक्सर माओं को कहते सुना है कि असी पुत्र तेन सूखी जगह से सोने से आप गिली जगह से सोने से सुना है कभी आपने ये? तो ये होती है उनकी मोहब्बतें और प्यार उनका। और आपको पता है जब बचपन में या अभी भी आप अपने वालिदैन को बताएं कि मुझे कुछ बीमार हूं, परेशानी है, तो वो अपनी परेशानियां बीमारियां भूल के सिर्फ आपके लिए दुआओं में लग जाते हैं कि या अल्लाह इन दी बीमारी में मैनू दे दे, इसका मतलब मुझे। ये होते हैं वालिदैन। तो वालिदैन को जितना भी सैल्यूट किया जाए, जितनी भी मोहब्बत की जाए वो कम है और इस बात में बड़ा दम है जी। So my next word is delicate, DELICATE, and its Urdu meaning is nazuk, and in English it's mean fragile or sensitive. फ्रेजाइल होता है नाजुक, जो टूट फूट के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव हो। आपने देखा नहीं अगर आप कोई कांच के शीशे के बर्तन लाते हैं और उस डिब्बे के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, राइट? And grammatically it's an adjective, and the synonyms are graceful, flimsy, or fine, or sensitive, and Flimsy, very good. and the antonyms are thick, tough, or rough, or solid, and the collocations are delicate flower, delicate heart, or Delicate heart, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से, वो नहीं फूल के पति से नहीं कि कोई खातून फूल है उसके पति से नहीं। इकबाल ने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर, कि अगर वो है ही नादान आदमी, जितना मर्जी अच्छा बयान करते रहो उसके सामने, उस बेअसर है उसके लिए, राइट? मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर, शाबाश। delicate aroma or delicate situation, and the sentence is बड़ी नाजुक सूरत हाल, डेलिकेट सिचुएशन। आपने सुना होगा अक्सर टॉक शोज में कि पाकिस्तान अपने तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। इसको सुनते हुए 75 साल हो गए। नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि हस्बैंड शादी के बाद अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ये तो एक मतलब मुसलमा हकीकत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान कायम हुआ और इंशाल्लाह ये दाइम आबाद रहेगी ये दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। असीलियत मौजूद कुछ साल बगैर और अल्लाह पैदा कर देगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं पाकिस्तान के लिए, नागुजीर हूं, मेरे बगैर चलना नहीं, तो किसी ने कहा था ग्रेव यार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। कब्रिस्तान नागुजीर लोगों के साथ भरे पड़े हैं जो कहने से मेरे बगैर चलना कोई सिस्टम। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान आबाद है, मौजूद है। पाकिस्तान तो नहीं खत्म हुआ ना, तो पाकिस्तान को रहना है। निचोड़ा खून तेरा जालिमों ने जी भर के, निचोड़ा खून तेरा जालिमों ने जी भर के, मेरे वतन तेरा फिर भी शबाब बाकी है, राइट? and the example sentence is he spoke in a delicate manner, and In front of the women. Okay. and the another sentence is she handled the delicate vase with extreme care. was होता है वो
Guldan, she handled the delicate vase with great care. Fragile था ना, बहुत ही नर्म और नाजुक था. शाबाश. That's- Thank you. Very good. Are you enjoying the vocabulary? Yes. Are you increasing the vocabulary? You're enjoying it as well. Very good. बोले बोले बोले. बोले सर. What is denial? Spelling RDEN. Denial. 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 Grammatically, it's noun. Its Urdu meaning is inkar. हाँ जी. Its English meaning is denial. Inquire. अच्छा. Denial mean refusal. Yes, sir. Refuse जैसे होता है ना, deny, refuse, refusal, deny. आपने वो कहते ना यार होता है state of denial में रहता है. और इस टाइम भी किसी चीज से वापस से पीछे हो लेना है या फिर हाँ, बहुत ही अच्छी बात की है. ये अभी हम देखते हैं इनकी कॉलोकेशंस को देखते हैं. जी. Denial refers to refusing something. Denial refers to Refusing something. refusing something. किस चीज को इनकार करने के लिए denial इस्तेमाल होता है. Synonyms are rejection, Sorry? rejection, Rejection. non-acceptance, Non-acceptance. refusal, Refusal. and disbelief. And Disbelief. disbelief. Right. Antonyms are acceptance, Acceptance. approval, Approval. allowance. Allowance. आप जरा देखिएगा कि the difference between the meaning of denial and refusal. जी शाबाश. Collocations are strong denial, complete denial, Strong denial, complete denial, complete denial, denial of responsibility, denial of responsibility, denial of service. denial of service. बहुत अच्छे आपने collocations बताएं. शाबाश. Example sentence is the group is protesting the denial of voting rights to convicted felons. The group is protesting the denial of voting rights to convicted felons. for the denial of Sir, no. The denial of voting rights. Vote के जो rights. protesting against कोई इधर एक इस्तेमाल होना चाहिए preposition. Okay. Sir, अगला sentence बताऊं. जी नेक्स्ट बताएं इसका क्या है. I can't believe you are denial about your mistakes. I can't believe your denial about the mistake. Yes. हाँ, मैं नहीं यकीन रखती आपने जो गलती की है. और आप ये बताइए कि जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड और वाइफ में एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हस्बैंड कर सकता है, वाइफ कभी नहीं कर सकती. वो है मिस्टेक, गलती. वो सिर्फ हस्बैंड कर सकता है, वाइफ की कभी गलती नहीं होती. ये याद रखिएगा जी. मैं अगर आप ये कहें तो स्टेट ऑफ डिनाइल में हो सकते हैं, मुमकिन आप हो. जी थैंक यू. Second word is depict. 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 DE हाँ देखिए आपने अपने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कहा. Depict. डिपिक्ट होता है, Depict. डेपिक्ट नहीं है. सर वो मैंने गूगल सर्च किया था, उन्होंने यही. नहीं, प्रोनाउंसिएशन डिपिक्ट. Okay. PICT DEPIC डिपिक्ट. तस्वीर कशी करना. हाँ जी. क्या मतलब लिखा था उन्होंने? सर यही. अच्छा यही लिखा हुआ था. Grammatically it's verb. Grammatically depict is a verb और depiction is a noun. Depiction तस्वीर कशी. Synonyms are portray, describe, Portray. हेलो PORTRAY portray. Describe. और इसका नाउन होगा portrayal. Portrayal of the picture. narrate, और इसका नाउन एक होता है पोर्ट्रेट. बड़ी तस्वीर पोर्ट्रेट या तस्वीर को कहते हैं. आप एक याद रखिए उसूल जिंदगी में जितना बड़ा वाकया होता है ना, जितना बड़ा फर्द होता है उतना करीब से नजर नहीं आता. थोड़ा सा दूर होकर देखें उसको जरा. आप देखिए कि अगर आप बहुत बड़े पोर्ट्रेट के पास खड़े हुए, पोर्ट्रेट तो बहुत बड़ा है, 100 फुट का पोर्ट्रेट है,
आप उस पोर्ट्रेट के बिल्कुल पास खड़े हो जाएं, बिल्कुल पास, तो उसको देख सकते हैं आप? तो कैसे नजर आएगा? जब आप उससे दूर होते जाएंगे, और जितना दूर होते जाएंगे उतना आपको वो पिक्चर या पोर्ट्रेट, उसकी तस्वीर वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाएगी। राइट। तो इसी तरह से बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, बड़े वाकयात भी ऐसे ही होते हैं। जब आप थोड़ा सा उनसे दूरी इख्तियार करके देखते हैं तो फिर पता चलता है असल में मंजर था क्या। शाबाश। नैरेट, रिलेट, इमेज। जी, नैरेट सर सिनोनिम्स में है। नैरेट, मैरिट, नैरेट, स्पेलिंग? हाँ शायद। और रिलेट, रिलेट, इमेज, रिलेट, इमेज, और इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट। इलस्ट्रेट। यस सर। इलस्ट्रेट होता है पोर्ट्रे, टू डिपिक्ट, टू इलस्ट्रेट। यस सर। और एक और वर्ड शुरू में, एक वर्ड बताया था आपने, कौन सा था? नरेट। यस सर। नरेट और रिलेट। रिलेट। नरेट वैसे होता है बयान करना किसी चीज को। स्टोरीज नरेट करते हैं आप अक्सर में, कहानियों को नरेट किया जाता है। राइट, ओके। एंटीनिम्स आर कंसील, हाइड। एंटोनिम्स इसके हैं कंसील, छुपा लेना, हाइड, छुपा लेना। ऑब्स्कर। जी, अब ऑब्स्कर नहीं, वो ऑब्स्कर स्पेलिंग बताएंगे? OBSCUR। OBS, ऑब्स्ट्रक्ट। नो सर, OBSCUR। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योरिटी की नाउन इसका। ऑब्स्क्योर भी होता है मुबहम, ऑब्स्क्योर। जी, छुपा हुआ, ऑब्स्क्योर। और ऑब्स्क्योरिटी, कवर, डिस्गाइज भी होता है, छुपाना। और एक लफ्ज आपने कैमोफ्लाज सुना होगा, कैमोफ्लाज। ये फौजी करते हैं कैमोफ्लाज। और उसके या आप देख लीजिए, बहुत बूढ़े लोग भी होंगे, जाली बाल लगवा के, काले करके, सफाई करवा के, बड़े टाइटनिंग करवा के स्किन को, और बोटॉक्स करवा के, और क्या, निडलिंग भी होती है, ऊंधा नहीं मैंने पता हैगा। वो सारा कुछ करा के तो लगेगा जिसमें जो अम्मा जो है वो है 65 साल की, लेकिन उसकी लुक्स 35 साल वाली हैं। और आप इसलिए ख़वातीन आप देख लें, फौत भी जल्दी नहीं होती, तो क्योंकि उन्होंने इन सारे कैमोफ्लेज कर लेती है ना, अपने आप को छुपा लेती हैं, ओरिजिनलिटी को, उनकी रियलिटी नज़र नहीं आती है। सर मिक्सअप भी है, कवर भी है, और मिस रिप्रेजेंट भी है। थैंक यू। उसके बाद बताएं नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस। जी जी, सेंटेंस। आई लाइक द वे शी डिपिक्ट द कैरेक्टर्स इन हर नॉवेल। डिपिक्ट द कैरेक्टर्स इन हर नॉवेल्स। I like the way she depicted the character of the hero and the heroines, character of the hero and the heroines in the novel. जिसने उस तस्वीर कशी की है हीरो हीरोइन के कैरेक्टर्स की, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। I really appreciate her, the way she has depicted, या her way of depiction of the character of heroine heroine in the novel. So collocations are depict a scene, Depict a scene, एक सीन को की मंजर कशी करना। depict a character, Depict a character, एक किरदार को मंजर कशी करना। depict an emotion, Depict an emotion, आपने देखा कभी बाज़ औक़ात बड़े करीब ले जाते हैं चेहरे के पास कि बस खुशी के जज्बात भी हैं, रोना भी आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कैफियत जब मिल जाती हैं तो वो फिर एक जो हीरो या हीरोइन होता है उससे कहना, अब आपने मिक्स्ड फीलिंग्स लेकर आए, तो कैसे लेकर आएंगे आप? आपको मैं किसी दिन कैप्चर करूंगा कि आपने कैसे फीलिंग्स करें। सारा सी को ड्रामा आर्टिस्ट तो नहीं बन रहा ना। ऑलराइट जी। और depict an events. डिपिक्ट एन इवेंट, किसी मौके को डिपिक्ट करना। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। यस, द नेक्स्ट वर्ड्स प्लीज। The first word is devastate. Its grammatical status is verb. Devastate, स्पेलिंग बताएं पहले क्या है? DEVASTATE.
Devastate. Devastate, devastate. Its meaning in English is severe damage, and in Urdu, Damage, damage, damage. its, तबाह व बर्बाद करना. its meaning in Urdu is tabah karna, barbad karna. The synonyms are destroy, ruin. Destroy, devastate. The antonyms are restore, rebuild. The sentences for this word are: the earthquake devastated the city. The earthquake devastated the city. ज़लज़ले ने तबाह व बर्बाद कर दिया शहर को. The storm left the island completely devastated. Sorry? The storm left the island completely devastated. The storm left the island completely devastated. जो सुनामी आया, जो तूफान आया, उसने आइलैंड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया. The collocations for this word are: devastate a landscape, devastate a city. Devastate a landscape, एक लैंडस्केप को डेवस्टेट करना, तबाह करना. Devastate a city. Devastate A city. a city, शहर को तबाह बर्बाद करना. The second word is इसका सेंटेंस ही बताया आपने, बता दिए. राइट, शाबाश. नेक्स्ट. the second word is deteriorate. Deteriorate, deteriorate. Its grammatical status is verb. ये वर्ब है. जैसे devastate वर्ब था, devastation उसका नाउन है. Devastating एडजेक्टिव है. Devastating earthquake, devastating floods, तबाह बर्बाद कर देने वाले floods. और deteriorate ये भी होता है. क्या होता मतलब? स्पेलिंग बताएं. डिटीरियोरेट के क्या है पहले? Deteriorate. अच्छी. डिटीरियोरेट, RATE, डिटीरियोरेट. Its meaning in English is worse. Meaning in Urdu is खराब. क्या है? हाँ, खराब होना या कमजोर होना. खराब होना या कमजोर होना. शाबाश. The synonyms are decline, worsen और decay. एक्सक्यूज मी. डिक्लाइन, डिक्लाइन भी होता है ज़वाल पजीर होना. डिटीरियोरेट, जैसे कहते हैं कि आर सोशल कस्टम्स आर डिटीरियोरेटिंग. हमारी समाजी जो कस्टम्स क्या हैं, रिवायात क्या हैं, वो ऑन द डिक्लाइन हैं. द डिक्लाइनिंग, डिटीरियोरेटिंग. जी हाँ जी, अब तरी का शिकार है जी. The antonyms नहीं, are इसके और क्या है सिनोनिम्स? worsen. वर्स, Worsen. स्पेलिंग WORSEN. वर्सन, वर्स से वर्सन, बुरा बनाना. वर्स होता है ना, बैड, वर्स, वर्स्ट. तो उसका वर्ब भी होता है WORSEN, वर्सन. यही है ना? Yes. वर्सन, बुरा करना, बुरा बनाना. जी, The antonyms are improve, enhance and flourish. वेरी गुड. एंटोनिम्स इसके हैं improve, enhance, flourish. फ्लरिश बहुत अच्छा वर्ड है. FLO, flourish, FLOROUS, flourish, फलना फूलना. The sentence for this word are: Flourishing, the businesses are flourishing. कारोबार जो है वो फल फूल रहे हैं. You're right, okay. The sentence for this word is: the car became to deteriorate after years. The car Began to deteriorate after years. after Years. the car began to deteriorate after years. कार का सालों के बाद उसे डिक्लाइन करना शुरू कर दिया उसने. क्योंकि इंसान हो या गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, उसने हमेशा एक कंडीशन में नहीं रहना होता. चीज़ों का आगाज़ होता है, वजूद में आती हैं, फिर वो अपने मैक्सिमम क्लाइमेक्स पे पहुंचती हैं, और फिर एंटी क्लाइमेक्स का सफ़र शुरू हो जाता है. आप ये एक आप देखें कि बचपन, जवानी और फिर भरपूर जवानी होती है वो 40 और 40 के बाद जो है वो फिर ये क्लाइमेक्स है. 40 क्लाइमेक्स है.
40 के बाद फिर एंटी क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है। फिर इंसान की चीज़ें मामलात जो हैं वो वैसे नहीं रहते जैसे भरपूर जवानी में होते। तो दैट्स इट, ये एक नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल सर्कल है। ओके, तो सेंटेंस हो गया आपका। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। Yes, please. Now, My first word is diminish. diminish. D-I-M-I-S-H. D-I-M-I-N-I. Budima. Oh, sorry. S-H. Diminish. It's grammatically a verb. Its English meaning is make less or become less. And English meaning is? make less or become less. In Urdu is kam karna कम करना, make less or become या less. become less. Diminish. Its घट कर देना. its synonyms are decline, reduce, decrease. Decline, reduce, decrease. Its antonyms are increase, flare up, or rise up. Right. Its collocations include diminish dramatically, diminish significantly, and diminish rapidly. Shabash. Its sentence is the drug's side effect should diminish over time. My Shabash. next word is discard. It's grammatically a verb, D-I-S-C-A-R-D, discard. Its meaning in English is get rid of. Get rid of, discard. And Urdu is zaya karna. Its synonyms include dispose of, throw away, and threw out. Its antonyms include keep or acquire. Its collocations include discard in, discard from, discarded item. And in sentence we can use it as drain and discard the rosemary leaves from rosemary oil. All right. That was Thank you very much. Very good. Excuse me. Yes, Mr. Hafiz, what's your name? Hafiz Rashid Saeed. Hafiz Rashid. So Hafiz Rashid, Kusur, he's from Kusur. Yes. कुसूर के हवाले से एक बड़े ही पंजाबी के जो हमारे पोइट हैं अनवर मसूद, उन्होंने कहा कि 3 लाइन की एक उनकी छोटी सी नज़्म है कि टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी ते टाली जिथे दसी सासू उथे तक जूर है, इहदे विच दसो भला मेरा क्या कसूर है। तो हमारे कुसूर से हाफिज साहब प्लीज स्टार्ट। सब वर्ड एलिजिबल, 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 इसका मीनिंग है स्पेलिंग पहले बताएं। ELIGIBLE, एलिजिबल। इसके साथ प्रेपोजिशन भी लगती है फॉर। क्या लगता है? प्रेपोजिशन इसके साथ लगती है फॉर, एलिजिबल फॉर, किसी चीज एलिजिबल फॉर, शाबाश। किसी चीज के ये काबिल प्रेपोजिशन होना। बताई साथ इनके कौन सी इस्तेमाल होती है? किसी चीज के लिए फिट होना, एबल होना, कैपेबल होना। हाँ जी, इसका सेंटेंस बोलता है ही डज नॉट एलिजिबल फॉर। एलिजिबल के ना आपने सिनोनिम्स बताए हैं, ना एंटोनिम्स बताए हैं, बताता हूँ सर वो ना आपने इसके कॉलोकेशन। तो सेंटेंस सबसे आखिर में बताना है आपने। जी सर ठीक है। एलिजिबल सिनोनिम्स क्या है इसके? इसका कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट, शाबाश, बहुत अच्छा वर्ड है कॉम्पिटेंट। ज़हीन, वर्थी है, क्या है? वर्थी, स्किलफुल, वर्दी, 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 स्किलफुल, हाँ, क्वालिफाइड, वर्दी, स्किलफुल, क्वालिफाइड, शाबाश। इतने वर्ड आपने सुन लिए, इतने तो एक साल में बंदा वर्ड सुनता है जितने एक ही दिन में आप सुन लेते हैं यहाँ। तो राइट। इसके एंटोनिम है अनस्किल्ड, अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड, अनक्वालिफाइड, और शाबाश। एक है अनफिट, 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 UNFIT, ठीक है, हाँ, और अनस्किल्ड भी है। वेरी नाइस। हाँ जी, और इसका सेंटेंस जो बनता है ही डज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज ही डज नॉट स्टैंड एलिजिबल। स्टैंड एलिजिबल, कोई आप डज नॉट एलिजिबल थोड़ी होगा, डज नॉट के बाद एडजेक्टिव थोड़ा लगाएंगे आप। जी, अनफिट एलिजिबल फॉर दिस, ही डज नॉट स्टैंड एलिजिबल for this job because he for the job, because he don't know because he does not how to operate the computer, because he doesn't know how to operate the computer. He does not stand eligible for the job
बिकॉज ऑफ हिज हाइट। उसकी जो इन पुलिस डिपार्टमेंट और इन सिविल नॉट सिविल सर्विसेज, वो जो होते हैं आपके आर्मी या पर्सनल उसके लिए एक ख़ास हाइट की रिक्वायरमेंट भी होती है। यस सर दूसरा वर्ड है एलीट। एलीट एलीट एलीट, ELITE, एलीट। इसका मीनिंग उर्दू में अशरफिया। इसका मीनिंग है उर्दू में अशरफिया। अशराफिया, अशराफिया। अशरफिया नहीं है, अशराफिया होती है। एलीट, एलीट क्लास होती है जो अशराफिया की क्लास, जो कि प्रिविलेज्ड लोग होते हैं। असल में वो लोग होते हैं जिनको घर, गाड़ी, पैसा, नो प्रॉब्लम, वो होती है अशराफिया। इसके सर सैनोनिम हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसके हैं क्रीम, अरिस्टोक्रेसी, तालीम, क्रीम, क्रीम, पिक, फ्लावर, क्रीम, पिक, फ्लावर और नोबेलिटी, और इसके अलावा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी या एलीट, राइट, एलीट क्लास। एलीट क्लास इन्वॉल्व। एंटोनिम्स क्या है इसके? हैं पॉवर्टी, गुर्बत। हाँ जी, इसके अलावा पुअर, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। राइट। पुअर, वीक, इसके एंटोनिम्स हैं पुअर, वीक, मॉडेस्ट। पुअर, वीक, मॉडेस्ट, शाबाश। इसका जो सेंटेंस प्लीज। जी जी सर। लीड क्लास इन्वॉल्व वीट स्कैंडल करंटली। Elite class is involved in a wheat scandal currently in Pakistan. अल्लाह अकबर, किथे जाए गल, किथे ले गया जी। राइट, वीट क्रॉप के जो स्कैंडल है उसने एरिस्टोक्रेसी के ऊपर या एलीट क्लास के ऊपर डाल दिए। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, थैंक्स फॉर इनविटेशन। Dear friends, honestly, it's a great time which I spent in your company, but learning new words, lots of new words you talk about, you give certain explanations, and sometimes it's quite funny while listening to you guys because you are not able to pronounce them well. I'm also not familiar with every word of the word, of the dictionary. I'm not a dictionary by the way. I'm one step ahead of you, so I'm also learning when you are talking about. When you are telling these new words, इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, और जब वो सीखना बंद करता है तब शायद वो मर जाता है, यकीनन मर जाता है। इसीलिए अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें, लर्निंग करते रहें, न्यू वर्ड्स डेली बेसिस पे सीखें। इट्स अ वंडरफुल एंड अ वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। आप जब इसको वर्ड्स को सीखना शुरू करेंगे तो आप एक नई दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, और वो वर्ड है द वर्ड ऑफ नॉलेज। आप देखिए अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में जब बात की है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने फ़ौक़ियत दी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के ऊपर भी, और फिर इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो शैतान, जो के बाद में उससे पहले अज़ाज़ील था शायद, वो उसको उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि तुम जरा सजदा करो ना इसको आदम को, जिसको मैंने तख्लीक मट्टी से किया है। तो उसका आर्गुमेंट था कि मैं इस मट्टी वाले फर्द को क्यों करूं, मैं तो आग से बना हूं, मट्टी नीचे गिरती है और आग ऊपर उठती है, तो मैं तो सुपीरियर हूं इससे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, जो मैंने कहा है उस वजह से सजदा करो। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। कुरान मजीद की आयत मुबारक का तर्जुमा है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा, नाउन्स, वर्ड्स, वोकैबुलरी, इल्म दिया, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने उनको सुपीरियर कर दिया तमाम लोगों से और फरिश्तों से भी। तो इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना,
मगर इसमें पड़ती है मेहनत से ज़्यादा। थोड़ा काम मुश्किल है, लेकिन आप तमाम मखलूक़ात से अफजल व आला हैं। इसीलिए इंसान को कहा जाता है अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूकों से बेहतरीन, अशरफ, बरतर। तो आप बेहतर हैं, बरतर हैं, लेकिन इंसानी खसाइस और खसाइल पैदा करना ज़रूरी है अगर आप अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो। और वगरना अगर सिर्फ आप खाना पीना, सोना, कपड़े पहनना, गाना बजाना, ये चीज़ें आप ज़िंदगी में रखेंगे सिर्फ, तो मैं खाना पीना सोना, ये तो जानवर भी ऐसे ही करते हैं। जानवर खाते भी हैं, पीते भी हैं, नस्ल भी बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जानवर रहते हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफ मखलूक़ात बनाया है इल्म की बुनियाद पर, सोच समझ की बुनियाद पर। जो अल्लाह ने सलाहियतें इंसान को दी हैं वो किसी और चीज़ में नहीं है। इंसान कितना तेज है, शेर इंसान से कितना ताकतवर तरीन मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को ऐसे समझ ली है तो उसको काबू में कर लिया शेर को उसने। लूमड़ी कितनी ज्यादा जो है वो चालाक होती है, इंसान इतना चालाक है या इतना समझदार है कि उसको भी काबू में कर लिया उसने। आप देखिए कितना तेज भागते हैं कुछ जानवर, और कुछ अल्लाह ताला इंसान को अल्लाह ने दिया कि जो जितना मर्जी तेज भागो। इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी, उसने जहाज बना लिया, और फिर वो उसका मुकाबला कर सकता है कोई परिंदा या कोई उड़ने वाला या कोई जानवर जो तेज दौड़ने वाला है। तो इसीलिए तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह पाक ने इंसानों को फ़ौक़ियत बख्शी है। तो उस फ़ौक़ियत के हवाले से ज़रूरी है कि हम इसका एहसास करें, इदराक करें, शौरी तौर पर अल्लाह के जो है वो शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रातों को इबादत करते थे तो पाँव में वरम आ जाते थे, रातों खड़े खड़े सूज जाते थे पाँव उनके। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह पाक ने जो है वो बनाया है, कायनात का वारिस और अमीन बनाया है, तो आप ऐसे तो ना करें, इतना ज़्यादा तो मुशक्क़त में ना पड़े, और आप तो वजह तख्लीक कायनात हैं, कायनात आपकी वजह से तख्लीक की गई अल्लाह ताला ने, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, फिर आपको इतनी ज़्यादा जो है वो इबादत करना, इतनी ज़्यादा जो है अपने आप को मुशक्क़त में डालने का क्या जवाब है। तो आपने फरमाया कि अफला अकूना अब्दुन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और शुक्र अदा करने के सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज की अदायगी है। आप ये मुंह से जितना मर्जी करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अदा नहीं होता जब तक आप उसकी ताज़ीम के मुताबिक खड़े होकर उसके सामने झुकेंगे, फिर अल्लाह कहेगा इसने हक अदा करने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। Thank you very much, guys, girls. You are all very brave people. बहुत बहादुर हैं आप. You come here on the stage, behind the podium, talk to everybody, discuss words. Sometimes you are discussing words. Sometimes you're giving examples, and sometimes you are, giving the answers to the questions, and sometimes you are giving the presentations on different topics. So here you go. You are actually very brave, and you're very blessed. Blessed because you are students of the Genius Institute Lahore. May Allah bless you all and stay blessed forever. God bless you. Take care and thank you very much.